Hello, good morning student. Today we are going to start our new point of this lesson, that is a specific heat capacity. For the learning the specific heat capacity, we have carry on one simple experiment. It's a very simple experiment. Just okay? So we have starts our new point of this lesson, that is a specific heat capacity. Actually we have it is starts now. So in that experiment, it's okay, I have already show one arrangements how the experiments arranged here. Yes, okay, it's shown on the screen. Actually for this carrying experiment we require some necessary. Just okay, what is our requirement here? This is one of simple requirements. Yes, we have gets easy anywhere. Just okay, so here is one have first requirement is that there is a tray with a layer thick wax. Just okay, suppose we have prepared in also home, because in daily life we have used the candles, we have burns the candle, and after the burning it's after the using the candle there are a remaining wax, and such a total wax we have collect into one spread tray. Yes, and make it is it's a thick layer, and such a making thick layer. Yes, okay, wax is into the tray we have put it. We have prepare ourselves in our home also, as well as we have gets in market also. Just okay, such tray we have take there. Just okay, again we have take the solid sphere of iron, copper and lead. Just okay, as shown in a figure. देखिए, this pair is a iron, this pair is a copper, this pair is a lead. Just okay, these are all different sphere but having the same mass, same size. It's okay, we have put it, but they have a made by the different metal. Means the first is made by iron, another is made by copper, and third one is the made by the lead here. Just okay, and these are the different three metal ball. Just okay, having the same mass and it's okay size. Actually ठीक है, we have take it. Again we have take the burner. Yes, okay, as well as the spirit lamp. Burner no to spirit lamp लीजिए. Yes, again put one container with having water. Just okay, such like that we have take this, collect this requirement. Yes, which is necessary for this carry the experiment. Just okay, and we have try to carry the experiment. For the carrying experiment, how to follow the activity here? Yes, we have follow the activity, yes, as a given form. Just like this. Firstly we have take the three sphere of iron. Yes, देखिए ध्यान दीजिए बेटा. Firstly we have take the three sphere of iron. Yes, okay, just not iron, just okay, three sphere that is made by the iron, copper and lead. Just okay, we have take it. Just okay, again put all these three sphere. देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे पहले समय में क्या लिया बेटा, ये थ्री स्पीयर लेना है, थ्री स्पीयर ऑफ आयरन, कॉपर एंड लेड. Yes, we have take this and put into the these three sphere into the boiling water. Into the boiling water means the boiling water is nothing but means its temperature is 100 degrees Celsius. It's okay, and in that temperature, that system, we have heat it. Yes, these three balls. Just okay, for a same time. देखिए बेटा, यहाँ पे क्या करना है बेटा, सम टाइम में इस उसको यहाँ पे एक्चुअली हमें उसको हीट करना है. एंड टेक द थ्री स्पीयर आउट फ्रॉम वाटर. Yes, and all these spear will be immediately, instantly. Yes, okay, we put on the that given wax tray. Yes, okay, actually what we have learned here means when we have put the ball into the that's hot water or steam water. Yes, okay, which temperature is about 100 degrees Celsius, and in that water we have put this metal ball. Actually they absorb the heat, ठीक है, and due to the absorption of heat means the heat energy they absorb here. Just okay,
and such absorb heat energy. Yes, okay, due to it's became a hot. Yes, okay, and when it's became a hot, that time these three ball we have put on the wax, and wax have a property means the wax immediately goes to melt. That is whenever wax show the immediate effect of heat, immediate effect to heat. ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, टेक थ्री स्पीयर आउट ऑफ वाटर, पानी में से निकालेंगे। यस, एंड ऑल दी स्पीयर विल बी द यस एट ए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। उनका टेम्परेचर कितना है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में रखा था। तो उन्होंने जो बियर किया वाला टेम्परेचर, बियर मीन्स दैट इज वन ऑफ स्टोर एनर्जी, जस्ट दैट इज वन है वो, दैट इज एब्सॉर्ब एनर्जी बाय दैट मटेरियल। जस्ट ओके, सो दे पुट इमीडिएटली ऑन द थिक स्लैब, हमें इमीडिएटली उसको थिक स्लैब के ऊपर रखना है। थिक स्लैब विच इज द थिक स्लैब, दैट इज अ वैक्स थिक स्लैब। ठीक है, एंड नोट द डेप्थ दैट ईच ऑफ द स्पेस। अभी देखिए यहाँ पे डेप्थ, जैसे मैंने यहाँ पे इमीडिएटली में इंस्टेंटली तीनों बॉल को मैंने यहाँ पे वैक्स के ऊपर रख दिया है। जैसे कि वैक्स के ऊपर रख देते हैं तो देखिए बेटा, this they show the instantly just okay heat effect, and due to that heat effect, yes, wax goes to the melt, wax goes to the melts. Yes, okay, and the balls are inserted inside the wax, immerse into the wax, and they when immerse into the wax, yes, okay, we have noticed there, can the ball yes immerse or the inserted in a same length into the wax? Yes, we do not get this observation, means we have get the different observation. That is one have a, yes, we have get the one have a wonderful observation here. Yes, which wonderful observation, because these three ball have a same mass, same size. It's okay, but different material. It's okay, actually given heat to the ball, these three ball is also same. Yes, okay, we have put at the same time into that steam. Yes, okay, at that water. Yes, okay, actually having the same temperature, yes, having the same size. Yes, okay, so same mass, but can they absorb the same energy? No, means they absorb the different energy. Due to that we have get the emerging length is a different here. Yes, okay, this is very wonderful here. Yes, okay, actually iron ball goes to the depth, more depth. Just okay, inserting length is more here compared to the copper. Copper is less than iron. Yes, okay, and third one is the lead. It show the, that is a immersions. Yes, okay, insertion rate is very few compared to the both iron and the copper. So here we have learns. Yes, okay, which material have a, yes, have a, yes, absorbing heat capacity. Yes, that is a iron. Iron material have a absorbing heat capacity is more compared to the copper and lead. And lead material is a, they are absorbing heat energy. Yes, it is a not, yes, okay, it is a not more than the copper and iron. Just okay, it's very less. Just okay, so we have learned here, we have conclude here. What we have conclude, कोई बता सकता है बेटा? बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, चलिए यहाँ पे क्या दिखाई देता है, तो we have conclude here means the, yes, iron ball they have a, yes, more capacity, है ना, to conduct the heat, conduct the heat. Yes, okay, copper have a intermediate capacity, conduct the heat, है ना, compared to the iron and lead. And lead ball have a, yes, okay, conducting capacity of heat is very low, है ना बेटा। तो देखिए, तो हमने यहाँ पे इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखा, एक सिंपल सा है। ठीक है, खाली हम रीड करें तो भी हमें सहज समझ में आ सकता है। ठीक है बेटा, इसमें ऐसे कोई बहुत कठिन या कोई ऐसा टिपिकल यहाँ पे नहीं है, एक सिंपल सी मेथड है। इट्स ओके, एक्चुअली वी हैव फॉलो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एक्सपीरियंस यस इन आवर डेली लाइफ, यस रिलेटेड टू द अदर थिंग ऑल्सो, है ना। अपने दूसरी चीज़ों को लेकर भी हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लर्न कर सकते हैं ना बेटा। जैसे देखिए बेटा, हम कभी कभी आग से कुछ, है ना,
कभी कभी खेलते हैं जैसे कि ठंडी के जाड़ी के दिनों में, है ना। चलिए एक्चुअली हम वो पुट द, जैसे कि अभी एक स्टिक्स रखते हैं, कोई कोई स्टिक्स जल्दी जलती जल जाती है, कुछ स्टिक जलने के लिए थोड़ा सा समय लगता है ना बेटा। कुछ स्टिक्स जैसे कि कोई ऐसे, जैसे मैं उस अग्नि के पास लेने का प्रयास ही करता हूँ तो इमीडिएटली वो जल जाती है, ठीक है बेटा। तो ऐसे हमें दिखाई देता है। तो एक्चुअली वहां पे भी क्या होता है बेटा, हीट होल्डिंग कैपेसिटी से डिफर है। यस ओके। Actually, so in this way we have get this here, a specific heat capacity of the material is a different. Yes, okay, according to the different मेटल, ठीक है। हर एक मेटल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम नहीं होती, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी फॉलो कर दी है हमने। चलिए बेटा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए बेटा एग्जाम में हमें ये डायग्राम दी जाएगी और इस डायग्राम की को लेकर हमें यहाँ पे कुछ सवाल या कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, देखिए बेटा, यस गिव दी यस नेम ऑफ दिस थ्री बॉल। एक्चुअली यहाँ पे नेम नहीं होगी, शायद नहीं होगी क्योंकि तुमने यहाँ पे लर्न किया है थ्योरी में। तो यहाँ पे हमें नेम पुटअप करना होगा। हाँ, तो कुछ बच्चे यहाँ पे लीड बताएंगे, है ना। ऐसा होगा क्या, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपरली ये आयरन है, जो नीचे गया वाला भी आयरन मटेरियल है, जैसे जैसे हमने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। यहाँ पे कॉपर है, ऐसे ओके, एज वेल एज यहाँ पे लीड है। चलिए ऐसे तीन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। यहाँ पे शायद नाम न होंगे तो हमें यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, ये दे सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही नेम्स यहाँ पे हमें लेने हैं। यहाँ पे वैक्स है, वैक्स लेयर है, कैसे बनाना है ये भी मैंने तुम्हें बताया, इट्स वेरी सिंपल वन देयर, है ना बेटा। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी हमने ये लर्न की है, ठीक है। अभी इसमें तुम्हें ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच मेटल शो द मोर specific heat capacity, that time your answer is iron here, yes. Yes, and which metal is have a less specific heat capacity, that time you are getting answer is a lead here, yes okay. Which metal is a show the intermediate immersion into the wax, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट इमर्शन या इंटरमीडिएट यहाँ पे इंसर्शन कौन बता रहा है बेटा, दैट इज अ कॉपर हियर, ठीक है। मिस्टर कॉपर हैव ए इंटरमीडिएट हीट कैपेसिटी कंपैरेटिव टू द आयरन एंड lead, just okay. So in this way we have learned such a एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी। एक्चुअली देखिए बेटा ये जो हमने एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी यहाँ पे लर्न की है, अभी इसी को लेकर अपने थ्योरी में जो कुछ हमें यहाँ पे दिया है, अभी हम थ्योरी के ओर आते हैं। एक्चुअली इसे थ्योरी में क्या दिया है बेटा अभी बुक में, चलिए हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। एक सिंपल सा है, ठीक है बेटा। थ्योरी हम पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे डेफिनेशंस वगैरह मिली है। एक्चुअली ध्यान दीजिए, देखिए ये जो हमने स्पीयर लिए थे ना, द स्पीयर विच एब्सॉर्ब द मोर हीट, है ना। देखिए ये स्पीयर विच एब्सॉर्ब द मोर हीट, इस कौन सा स्पीयर था, चलिए बताइए बेटा, दैट इज आयरन, वेरी गुड, इट्स ओके। फ्रॉम द वाटर विल गिव मोर हीट ऑफ अ वैक्स, वही स्पीयर क्या करेगा, वैक्स को भी मोर हीट देगा, है ना बेटा, रिलीज करेगा वहां पे, है ना। वैक्स के ऊपर हम जैसे वो तीनों बॉल को रखते हैं तो वैक्स क्या करता है बेटा, तो मेल्ट होने लगता है। इसका मतलब वैक्स एब्सॉर्ब द एनर्जी, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर यस concentration टू द लोअर concentration। तो यहाँ पे बॉल क्या करते हैं, रिलीज द एनर्जी, है ना। जितनी उन्होंने बियर की है वो एनर्जी वहां पे रिलीज होगी, ठीक है। मोर वैक्स विल द स्मेल एंड द स्पीयर विल गो डीपर इनटू द वैक्स, है ना। मैंने बताया था वही यहाँ पे थ्योरी में है। एक्चुअली इट कैन बी द ऑब्जर्व दैट द आयरन स्पीयर गोज टू deepest into the wax and lead spear goes to the least and copper spear goes to the intermediate depth, है ना। एक्चुअली हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया था, डायग्राम में बताने का मैंने प्रयास किया था। देखिए बेटा लीड स्पीयर गोज टू द, यहाँ पे क्या होता है, लीड स्पीयर गोज टू द लिस्ट, लिस्ट यस वो कम चल रहा है, एंड कॉपर स्पीयर गोज टू द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। एंड दिस शो दैट द फॉर इक्वल राइज इन a temperature, yes, the three spear have absorbed a different amount of heat। इसका मतलब वो तीनों स्पीयर ने एब्सॉर्ब हीट कैसे की है, डिफरेंट की है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी डिफरेंट है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी डिफरेंट है। दैट इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज अ स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी है, ठीक है बेटा। सो दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, दैट द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द स्फीयर इज डिफरेंट फॉर थ्री स्फीयर, है ना, ये तीन स्फीयर के लिए डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मेटल, है ना, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग, ऐसे मटेरियल के लिए अलग है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक्चुअली ध्यान दीजिए, यही हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे अभी। इट्स अ वेरी वेरी आई एम पी डिफाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called as a specific heat of the ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट मिलती है यहाँ पे। तो स्पेसिफिक हीट में देखिए बेटा, द कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर सी। एग्जाम में पूछा जाएगा स्पेसिफिक हीट कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो स्पेसिफिक हीट, यस, दैट इज द कैपेसिटी of that heat, specific heat is denoted by the small c, and the SI unit of the specific heat is a joule per डिग्री सेल्सियस। क्या होगा बेटा यहाँ पे, जूल पर डिग्री सेल्सियस किलोग्राम। एंड सीजीएस में क्या होगा यहाँ पे, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। चलिए, तो यहाँ पे ये बातें ध्यान रखनी है, सिंपल से है, देखिए बहुत ही सिंपल है यहाँ पे थ्योरी। ओके, चलिए, एक्चुअली वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। In that next slide, just okay, there is a table or the tabular forms. In that tabular forms, we have provided a different substance, है ना। चलिए, पहले हमने यहाँ पे कितने सब्सटेंस लिए थे, जैसे कि आयरन लिया था, कॉपर लिया था, लेड लिया था, है ना बेटा। उसी तरह से यहाँ पे अभी हमें अलग से सब्सटेंस दिया है, जैसे कि वाटर दिया है, पैराफिन दिया है, केरोसिन दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, जैसे ओके, iron, copper, silver, mercury, just okay, these are whenever common to all, just okay, अभी ये अपने को सभी को कॉमन है, पता है हमें, ठीक है। तो हर एक सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट यहाँ पे अलग होता है। स्पेसिफिक हीट समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक हीट इसका मतलब उनकी ऊष्मा धारण करने की क्षमता, है ना बेटा। अभी जैसे देखिए बेटा, वो ऊष्मा धारण करने की क्षमता हर एक की समान है क्या, यहाँ पे नहीं है। ऊपर जो एक्टिविटी हमने लर्न किए हैं, है ना बेटा, वहाँ पे जो प्रोसीजर लर्न किए हैं, वहाँ पे हमने वो लर्न किया है, ठीक है ना। चलिए, तो वहाँ पे वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, यस 1, ठीक है। पैराफिन की कितनी है बेटा, 0.5, ठीक है। केरोसिन की कितनी है, 0.5, जस्ट ओके। एक्चुअली एक्चुअली एल्यूमिनियम की कितनी है, 0.2। चलिए, अप्रोक्सीमेट, आई हैव से हियर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यहाँ पे मैं पूरे फिगर नहीं रीड कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट समझ में आता है। जैसे देखिए बेटा, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जैसे हमें वैल्यू याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एक्चुअली स्पेसिफिक हीट, हाउ इट्स रिप्रेजेंट, बाय व्हिच लेटर, दैट इज अ small c, representing letter is a small c, yes, and mass is indicated by the m, ठीक है। एंड चेंज इन हीट इज नोन एज अ डेल्टा टी। डेल्टा टी इज नथिंग बट चेंज इन हीट। ये डेल्टा टी क्या होता है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये डेल्टा टी, ये जो डेल्टा टी है ना, चेंज इन हीट, चेंज डेल्टा इज रिप्रेजेंट फॉर चेंज, एंड टी फॉर जैसे कि हीट, टेम्परेचर के लिए हीट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मास ऑफ दैट सब्सटेंस, जो ये सब्सटेंस है ना। चलिए, एक्चुअली फिर उसकी स्पेसिफिक हीट, वो कितनी हीट धारण कर लेता है, उसकी क्षमता कितनी, कैपेसिटी कितनी है, और चेंज इन हीट, ठीक है। इसका ये जो रिलेशंस है, ये रिलेशन हमें यहाँ पे पता चलता है। अभी देखिए बेटा, इन द सेम वे द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is a C and the mass of object is m, and if the temperature of the object is a decreases delta T degree Celsius, then the heat energy lost by the object will be, ये कितनी होगी यहाँ पे, that is a m into c into delta T, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलती है, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल वन देयर। देखिए बेटा, ध्यान देखिए, थोड़े से इसको रीड करना है, इस ओके, और पूछे वाले जो आंसर तुम्हें क्विज में दिए जाएंगे, इसको हमें ध्यान देके इसको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए, दिस इज वन ऑफ सिंपली टर्म्स,
Yes, okay, simple experiment we have carried here, and with that experiment we have learned specific हीट कैपेसिटी, है ना। यहाँ पे आईएमपी क्या है, यहाँ पे आईएमपी है यस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस, यस क्योंकि उसके ऊपर एक्टिविटी के रूप में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे डेफिनेशन। चलिए डेफिनेशन को एक बार फिर हम यहाँ पे याद करते, देखिए बेटा डेफिनेशन में हमें क्या बताया था। ठीक है, तो डेफिनेशन में भी देखिए यहाँ पे क्या बताया बेटा, the amount of heat energy required to raise the temperature of the unit mass of an object by a 1 degree Celsius is called as a specific heat of the object। ठीक है, तो specific heat of object yes is a not same to all substances, it is a differ according to that material of that substance। मटेरियल ऑफ दैट सब्सटेंस, अभी देखिए ये सब्सटेंस का मटेरियल आयरन है, इस सब्सटेंस का मटेरियल कॉपर है, इस सब्सटेंस का मटेरियल लेड है। ठीक है, तो एक्चुअली each substances have a their particular capacity to holding the heat holding। ठीक है, और जितना वो हीट होल्ड करेगा उतना ही रिलीज करेगा। चलिए, तो यहाँ पे हीट ने इसने ज़्यादा होल्ड की तो रिलीज यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, तो इंसर्शन भी ज़्यादा आ गया। यहाँ पे रिलीज इससे तुलना में इंटरमीडिएट मिल रहा है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट इंसर्शन मिल रहा है। ये सबसे कम मिल रहा है तो इंसर्शन भी यहाँ पे सबसे कम है। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे लर्न किया है। एक्चुअली स्पेसिफिक हीट यस इसमें भी द रिप्रेजेंट बाय विच लेटर हियर दैट इज अ कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट कर की जाती है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी रिमेंबर करना है, इसे याद करना है। ठीक है बेटा, एज वेल एज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट। एसआई यूनिट में क्या है, एसआई यूनिट इज अ जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। एंड सीजिस में क्या आता है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। चलिए, कोई डाउट है यहाँ पे, इट्स वेरी सिंपल। एक छोटा सा यहाँ पे एक्टिविटी हमने यहाँ आज देखा है। यस, टुमारो वी हैव गो टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन। जस्ट ओके, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू।